تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات الیکشن کمیشن میں چیلنج الیکشن کمیشن میں درج درخواست کے مطابق درخواست گزار سابقہ ڈیپٹی سیکرٹری جنرل اسلام آباد تھے اور سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی کا انتخابات لڑنے کے خواہش مند بھی تھے۔ درخواست کے متن میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی کا انتخابات کا کوئی شیڈیول نہیں آیا، نہ ووٹر فہرستیں اور نہ ہی مرکزی سیکرٹریٹ میں کوئی سرگرمی ہوئی ہے۔ استدعا ہے کہ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دیا جائے۔ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے 3.25 لاکھ سے زائد فوج مانگ لی۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ آئندہ عام انتخابات کے لیے 5,91,106 سیکیورٹی اہلکار درکار ہے۔ چاروں صوبوں کے آئی جیز نے بتایا کہ دستیاب نفری 3,28,510 ہے۔ آئندہ عام انتخابات کے لیے 2,77,558 سیکیورٹی اہلکاروں کی کمی کا سامنا ہے۔ الیکشن کمیشن کی وزارت داخلہ کو ارسال کیے گئے خط میں لکھا گیا کہ وفاقی دارالحکومت میں 9,000 سیکیورٹی اہلکاروں کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد کے لیے 4,500 سیکیورٹی اہلکار دستیاب ہیں۔ شہر اقتدار میں 4,500 اہلکاروں کی کمی کا سامنا ہے۔ پشاور میں ایورسٹ روڈ پر نجی بینک اور اسکول کے قریب دھماکے کے نتیجے میں بچوں سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق پشاور کے علاقے ایورسٹ روڈ پر نجی بینک اور اسکول کے قریب سڑک کنارے نصب دھماکہ خیز مواد پھٹ گیا، جس سے زوردار دھماکہ رونما ہوا۔ دھماکے سے بینک کے شیشے ٹوٹ گئے اور قریب موجود دکانوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ملکوال کے تھانہ گوجرا کی حدود میں قتل کی لرزہ خیز وارداتیں۔ چند گھنٹوں کے اندر غیرت کے نام پر 2 خواتین کو قتل کر دیا گیا۔ علاقے میں شہناز نے اپنی 22 سالہ بہن کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ گاؤں بوسان میں خاوند شعیب نے اپنی 30 سالہ بیوی کا گلا کاٹ کر قتل کر دیا۔ پولیس نے ضروری کارروائی کے بعد دونوں واقعات کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ اور اکاڑا جی ٹی روڈ پر اڈا کسان کے قریب ٹرالر اور وین میں خوفناک تصادم۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا، ڈرائیور شدید زخمی۔ مرنے والے شخص کی شناخت امجد کے نام سے ہوئی ہے۔ شاکر کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ٹرالر ڈرائیور فرار ہونے میں کامیاب۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں حسنین حیدر اور میں ہوں اقصیٰ خان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس بریک کے بعد۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں رضاکاروں کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ رضاکار کسی بھی معاشرے کا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ بوائز اسکاؤٹ ایسوسی ایشن ہری پور کے زیر اہتمام ڈسٹرکٹ اسکاؤٹ کمشنر اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر مختار خان جدون اور ڈسٹرکٹ اسکاؤٹ سیکرٹری حاجی ذوالفقار احمد کی زیر نگرانی گورنمنٹ سینٹینل ماڈل ہائی اسکول تربیلا ٹاؤن شپ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ شربا کا کہنا تھا کہ رضاکار تنظیموں سے منسلک افراد کا بنیادی مقصد مفید شہری کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دینا ہے۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ تمباکو نوشی سے ہر 6 سیکنڈ بعد ایک شخص کی موت ہوتی ہے۔ ہر سال 50 لاکھ افراد جان کی بازی ہار جاتے ہیں، جبکہ 20ویں صدی میں 10 کروڑ افراد تمباکو نوشی سے اپنی زندگیوں سے
महरूम हुए। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का बच्चों को तंबाकू नोशी के असरात और नुकसानात से आगाही फ्राहम करने की तकरीब से खिताब। टंडोजाम गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल हाजी मोहम्मद इस्माइल लाखों में सिंध के सकाफती दिन के हवाले से तकरीब का इनेकाद हुआ। तलबा ने सिंधी अजरक टोपी पहनकर सिंध के रवायती गीतों पर रक्स भी किया। हेड मास्टर सिकंदर खान जमाली, मोहम्मद अख्तर आराई, नज़ीर ऊड, मरीद लाखों ने कहा कि सिंध की तहजीब हजारों साल पुरानी है और इस तहजीब को याद करने और दुनिया भर में ऐसे रोशनास कराने के लिए ये दिन मनाया जाता है। ना से खबर शामिल करेंगे सांगला हिल से, जहां म्यूनिसिपल कमेटी के सेंट्री वर्कर्स को 3 माह की तनख्वाहें ना मिल सकी। वर्कर्स के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। सेंट्री वर्कर्स का म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज है और नारेबाजी की गई। तनख्वाहें ना मिलने पर वर्कर्स ने काम करना छोड़ दिया, जिससे शहर भर में नालों की सफाई और कूड़ा करकट ना उठाने की वजह से बदबू और ताफुन फैलने लगा। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। सेंट्री वर्कर्स का कहना था कि हमें 3 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, घरों में फाके चल रहे हैं। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। सेंट्री वर्कर्स का म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी की गई। तनख्वाहें ना मिलने पर वर्कर्स ने काम करना छोड़ दिया, जिससे शहर भर में नालों की सफाई, कूड़ा करकट ना उठाने की वजह से बदबू और तफन फैलने लगा। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। सेंट्री वर्कर्स का कहना है कि हमें 3 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, घरों में फाके चल रहे हैं, अफसरान सिर्फ अपनी जेबें भरने में मसरूफ हैं। क्रिसमस डे करीब आ रहा है, लेकिन भूख ने हमारे घरों में डेरे डाले हुए हैं। सेंट्री वर्कर्स का डिप्टी कमिश्नर ननकाना से नोटिस का मुतालबा करते हुए कहना है कि हमारी 3 माह की तनख्वाहें। ओकाड़ा से खबर आपको देंगे, जहां डिस्ट्रिक्ट एंड हेडक्वार्टर्स अस्पताल में प्राइवेट टेस्ट करवाने वाले 62 शख्स को रोकना डिस्पेंसर का जुर्म बन गया। डिस्पेंसर की जानिब से रोकने पर 62 मुलजमान ने डिस्पेंसर को तशद्दुद का निशाना बना डाला। डिस्पेंसर का यह कहना था कि 62 मुलजमान मरीजों को झांसा देकर प्राइवेट लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवा रहा था। मुलजमान प्राइवेट लेबॉर्ट्री से कमीशन के हुसूल के लिए यह धंधा कर रहे थे। अनाज से खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से, जहां गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन में साइंसी मॉडल्स की नुमाइश का इनेकाद किया गया। तलबा की जानिब से तैयार किए गए मुख्तलिफ मज़ामीन से मुतल्लिका नमूने पेश किए गए। मेहमान खसूसी डायरेक्टर कॉलेजेस कलसूम अख्तर ने असासा और तलबा की मेहनत को खूब सराहा। इसी पर मजीद तफसीलात के लिए आजम न्याजी की रिपोर्ट देखिए। ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 फैसलाबाद में तालीमी मॉडल्स की नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसकी मेहमान खुसूसी डायरेक्टर कॉलेजेस फैसलाबाद मोहतरमा कलसूम अख्तर थी। तालीमी मॉडल्स बनाने के नुमाइंदा डिपार्टमेंट्स में मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और लाइब्रेरी साइंस शामिल थे। मेहमानों ने तालीमी मॉडल्स के स्टॉल का प्रिंसिपल के हमरा दौरा किया और बनाए गए तालीमी मॉडल्स में उस्ताद और तालबात की मेहनत को खूब सराहा। तालबात ने इस नुमाइश में भरपूर हिस्सा लिया और आइंदा भी ऐसी नुमाइशों में हिस्सा लेने के लिए पुरअज़म है। इस मौका पर तालबात ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा, इसका मकसद ये है कि बच्चों में सलाहियत पैदा हो। बच्चों ने इसमें बहुत मेहनत की है, हार्ड वर्किंग है, उनकी से जो मेहनत है वो जाहिर होती है कि बच्चे टैलेंटेड है, लेकिन पाकिस्तान में इसे दिखाया नहीं जाता। और हम अपने प्रिंसिपल के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हर साल ये एग्जीबिशन करवाती हैं और मुख्तलिफ मॉडल्स यहाँ पर बनते हैं। अंकल, इसका मकसद स्टूडेंट की सलाहियतों को देखने के लिए, हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है लेकिन इसको दिखाया नहीं जाता, इसलिए हमारे प्रिंसिपल ने एग्जीबिशन रखी है ताकि कॉलेज के बच्चों का टैलेंट देखने के लिए इनको उजागर और किया जाए मज़ीद। तकरीब के इख्तिताम पर कॉलेज की प्रिंसिपल ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा, जी बहुत शुक्रिया आपके आने का। आपके आने से भी बच्चों की बहुत हौसला अफजाई होती है। साफ जाहिर है वो चैनल पे अपनी देखते हैं एक्टिविटीज़ की, इस चैनल ने हमें कवरेज दी। बस ये बच्चों को करवाने का मकसद ये था कि उनकी अंदर की जो है एबिलिटीज़ वो सामने आए, क्योंकि आजकल का बच्चा टैलेंटेड बहुत है
और किताबी कीड़ा बनने से वो चीज़ नहीं हम हासिल कर रहे होते जो उनके इस तरह की एक्टिविटीज़ से होती हैं। और मैंने उनको बड़ा मोटिवेट किया और आपने देखा तमाम मॉडल्स उनके वर्किंग थे और बच्चों ने बहुत बहुत एफर्ट की, स्टाफ की बहुत एफर्ट की और इंशाल्लाह इस तरह की हम साइंस एग्जीबिशन कराते रहेंगे ताकि बच्चों की हौसला अफजाई होती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन अफजाल काजमी के हमरा मोहम्मद आजम खान न्याजी को। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे ओकाड़ा से, जहां जीटी रोड पर अड्डा किसान के करीब ट्रॉलर और वैन में खौफनाक तसादुम से हादसे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। मरने वाले शख्स की शनाख्त अमजद के नाम से हुई है। शाकिर को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ट्रॉलर ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पंजाब भर की पुलिस के लिए खुशखबरी है। दुनिया भर में जाने वाला शीशम का फर्नीचर सस्ते दामों मिलेगा। डीपीओ चनियोट का फर्नीचर एसोसिएशन के साथ एमओयू साइन हो गया है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद तैयब सीज। खूबसूरती हाथों से की गई मुनम्मतकारी और फन नफासत से तैयार होने वाला चिनोटी शीशम की लकड़ी का फर्नीचर जो दुनिया भर में अपनी पहचान आप है। पंजाब पुलिस मुलाजमीन को सस्ते दामों मिलेगा। शोधा पुलिस की बेटियों के लिए 50%, जबकि हाजिर सर्विस एहलकारों की बेटियों के लिए फर्नीचर में 20% रियायत होगी। चिन्योट की हिस्ट्री में पहली दफ़ा एमओयू साइन हुआ है जिसमें पुलिस शोहदा और जो हाजिर सर्विस पुलिस ऑफिसर जो वफात पा गए हैं उनके लिए, और स्पेशल एक डिस्काउंट हम दे रहे हैं पुलिस ऑफिसरान के जो हाजिर सर्विस हैं उनकी बेटियों के लिए। तो इसमें 50% डिस्काउंट दे रहे हैं हम शोहदा के लिए और 30% डिस्काउंट दे रहे हैं हम जो दौरान सर्विस जो हैं वो वफात पा गए हैं, और 20% पंजाब के जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी बेटियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट होगी। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद ने फर्नीचर एसोसिएशन से एमओयू साइन करने के बाद कहा कि इंशाल्लाह अगले मरले में मुल्क भर की पुलिस मुलाजमीन की बेटियों के लिए ये रियायत होगी। अभी हमने पंजाब पुलिस के लिए तमाम अजला के पुलिस अफसरान और मुलाजमान और शोहदा के लिए है और उसमें हम इसकी कवरेज एक्सपेंड भी करेंगे अगर इसमें हमें अच्छा रिस्पांस आता है और हमारा जो फर्नीचर एसोसिएशन के साथ ये एमओयू है आगे अच्छा तरीके से चल रहा है तो हम बिल्कुल ये पूरे पाकिस्तान के पुलिस के शोहदा को भी और उनकी फैमिलीज के लिए ये एक ऑफर और ये होगा। एमओयू के मुताबिक दौरान सर्विस वफात पाने वाले एहलकारों की बेटियों के लिए फर्नीचर में 30% रियायत दी जाएगी। पुलिस मुलाजमीन के लिए फर्नीचर खरीदारी के लिए फोकल पर्सन तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद तैयब सेज को बागपतन के गांव शाहनवाज के मकीनों का प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा जारी है। खूब नारेबाजी की। मुजाहरीन ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस को मनशियात की शिकायत करने पर एनी पुलिस का एएसआई इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आया है, उससे तहफ्फुज दिया जाए। मज़ीद जानते हैं तारिक चिश्ती की इस रिपोर्ट में। पाकपतन लीड पुलिस एएसआई की सरपरस्ती में मुंशियात बिकने की शिकायत जातियों को महंगी पड़ गई। गांव शाहनवाज के मकीनों को मुख्तलिफ मुकदमात में मुलवस करके थाने बुलवा कर ख्वार किए जाने लगा। यह है कि जनाब असी पिंड वाले रल के ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਜ਼ਨ ਚੱਕ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਤਿੰਨੇ ਭਾਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਗੁੰਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਵਰਦੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਪੁੱਛ ਪਨਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੈਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਖੌਫ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਾ। मुजाहिरीन का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए इल्जाम कि पुलिस को एहलकारों की शिकायत की थी जिस पर कार्रवाई भी हुई मगर अब जीना मुहाल किया जा रहा है। थाना चक बेदी उन्हें रेड किया है, चालू भट्टी भी फड़ी गई है, पाउडर भी फड़िया गया है, उन्होंने चलान हुई है, उन्होंने FIR हो चुकी है। उस तो बाद ASI ਜਿਹੜਾ ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁਦਈ ਬਣਾ ਕੇ ਝੂਠੀ FIR ਕਰਾਈ। ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਜਨਾਬ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ और असी बेगुनाह पाए गए। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए DPO पाक स्कूलों के तलबा ने मॉडल्स पेश किए। CEO एजुकेशन चौधरी औरंगजेब और DEO एलिमेंट्री पीर मुख्तार अहमद ने बच्चों के काम को बेहद सराहा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फयाज हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। दीनो दुनिया की
تعلیم کے ساتھ سائنس کی تعلیم میں دلچسپی لے کر سائنسی ٹیکنالوجی کے دور میں آگے بڑھنے کے لیے ایلیمنٹری اسکول کھائی میں تحصیل ملک وال کے سرکاری اور نجی بوائز اسکولوں کے طلباء نے سائنسی ماڈلز پیش کیے. بچوں نے اپنے تیار کردہ ماڈلز کے حوالے سے بتایا. میں نے سر LPG لیکوڈ پیٹرولیم گیس بنائی ہے جو کہ ایئر پمپ کے ذریعے آکسیجن لیتی ہے اور آکسیجن پیٹرول میں جاتی ہے. پیٹرول میں آبی بخارات پانی میں فلٹر ہو کے گیس کی شکل اختیار کر کے چولہے میں جا کے آگ جل سکتی ہے. کوئی بھی ایندھن آکسیجن کے بغیر نہیں جل سکتا. میرا جو ٹاپک ہے وہ گردے کی اندرونی ساخت. اس میں دو نالیاں ہوتی ہیں, ایک رینل وین اور رینل آرٹری ہوتی ہے. رینل وین میں گندا خون ہوتا ہے جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے. اس کی باہر والی سطح رینل کارٹیکس ہے, اس کے اندر رینل میڈولا ہوتی ہیں جو آپ کو شکل نظر آ رہی ہے 3 کونوں والے رینل پیرامڈز ہیں. یہ جو گندا خون ہے کاربن ڈائی آکسائڈ والا رینل پیرامڈز میں تقریباً 1 ملین نفران ہوتے ہیں جو اس کو فلٹر کر کے صاف خون کو واپس رینل آرٹریز کے ذریعے باہر لے لیتے ہیں. بچوں کا مزید کہنا تھا کہ وہ سائنس کی تعلیم حاصل کر کے ملک کا نام روشن کریں گے. اس موقع پر CEO ایجوکیشن چودھری اورنگزیب, DO پیر مختار احمد, ڈپٹی DO راؤ شفیق احمد نے اسٹالز دیکھے اور بچوں کو داد دی. DEO راؤ شفیق احمد کا کہنا تھا آج یہاں گورنمنٹ بوائز ایلیمنٹری اسکول کھائی تحصیل ملکوال کے اندر ہماری ایلیمنٹری لیول کی اینول سائنس ایگزیبیشن ہے اور یہاں پہ تقریباً ہمارے 22 اسکول جو منتخب ہو کر یہاں پر پہنچے ہیں. اصل اس نمائش کا جو بنیادی مقصد وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن کے حوالے سے موٹیویشن پیدا ہو اور بچے سائنس کی تعلیم کے اندر دلچسپی لیں اور وہ سائنس کی اہمیت کو سمجھیں. تو یہ انشاءاللہ ہر سال ہم یہاں تحصیل لیول پہ منعقد کراتے ہیں تاکہ بچوں میں موٹیویشن پیدا ہو اور وہ سائنس کی تعلیم اعلیٰ درجے پہ جا کے حاصل کرنے کی کوشش کریں اور جب یہ یونیورسٹی لیول پر پہنچے تو سائنس کی تعلیم کو ترجیح دیں. تو انشاءاللہ آج یہاں پر ہم بچوں کو فرسٹ, سیکنڈ اور تھرڈ جو آنے والے پوزیشنیں ہیں ان کو شیلڈ اور سرٹیفکیٹس دیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہر سال اس میں ہمارے اسکولوں کی جو پارٹیسپیشن وہ بڑھتی جائے. بہت آنے والے دیگر مہمانوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بچے اسکول و کالج میں سائنسی مضامین میں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں کیونکہ آج کا دور سائنسی ٹیکنالوجی کا ہے جو سائنسی تعلیم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ فیاض حسین شاہ, کوہ نور نیوز. ناظرین, بھوانہ حکومت اور انتظامیہ کی عدم توجہ بھوانہ تٹاہلی منگنی روڈ خستہ حالی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا. جگہ جگہ گڑھے اور کھڈے پڑ گئے ہیں. اہل علاقہ کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. رپورٹ کریں گے ملک جعفر علی. جی بالکل, بھوانہ حکومت اور انتظامیہ کی عدم توجہ بھوانہ ٹاٹالی منگینی روڈ خستہ حالی کا شکار ہے. جگہ جگہ گڑھے اور کھڈے پڑ گئے ہیں. روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. روڈ ناہموار ہو گیا جس سے اہل علاقہ کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا درپیش ہے. یہ روڈ عرصہ 5 سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جس سے ایکسیڈنٹ معمول بن چکے ہیں. بچوں کو اسکول جانے کے لیے مشکلات کا سامنا درپیش ہے. منتخب نمائندوں نے بھی دریائی علاقے کے لوگوں سے ترقیاتی منصوبے سے محروم رکھا ہوا ہے. ان کی فصلات منڈیوں تک نہیں پہنچ سکتی, اس لیے ان کا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ روڈ کی تعمیر و مرمت کی جائے تاکہ ان کی پریشانی ختم ہو سکے. میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں, اس سے بات کرتے ہیں. جی اور یہ جڑا روڈ ہے دریا والی سائڈ تے جاندا ہے. دریا تو اکثر اسی جڑا مکئی لے آمنا ہے, اس تو بعد کمان لے کے آمنا اور ساری جڑی ٹرالیاں ہیں اور ٹریکٹر انہاں دا اکثر دی حصے ٹوٹ جاندے اس روڈ دی جمپاں دی وجہ تو. اس تو بعد ساڈے جڑے بچے نے جڑے سکول جاندے وہ بچیاں دے جڑے رکشے او پنچر ہوندے ہیں. اس تو علاوہ رکشیاں دا نقصان ہوندا اور مزید جڑا ہے بس مریض جڑے راتی لے کے آمنا جانا, اگر سانو راتی مریض لے کے آمنا پوے تو اس واسطے بڑی مشکلات ہیں. ساڈے جڑے MP MNA انہاں دی اس روڈ تے بالکل توجہ کوئی نہیں دیتی اور یہ روڈ عرصہ تقریباً پچھلے 5-6 سال تو اسی طرح ہے اور اس میں بالکل جڑا کسی نوٹس کوئی نہیں لیا. ساری حکومت جڑی پنجاب ہے اور DC چنوٹ نو اپیل ہے کہ اس روڈ نو جلد جلد مرمت. خبر شامل کریں گے الہ آباد سے, جہاں پنجاب پولیس کے جوان کا انوکھا کارنامہ ہے. CCTV فوٹیج نے بھانڈا پھوڑ کے رکھ دیا. محافظ ہی لٹیرے نکلے. کنگن پور ہسپتال دوائی لینے آئے شہری کی موٹر سائیکل چوری کر لی جس کی CCTV فوٹیج کوہ نور نیوز کو موصول ہو گئی ہے. میں سے پوچھا مطلب جو ادھر لڑکے تھے, میں نے کہا بائک تو آپ نے نہیں, کس نے لی؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں پکڑی. تو پھر ہاسپٹل کے مالک آئے ہیں تو ریکارڈنگ وغیرہ نکالی ہے, کیمرے کی ریکارڈنگ نکالی ہے. تو پھر وہاں پہ کال کی ہے تو پولیس والے آئے ہیں. ہم نے اس کو یہ سارا جو معاملہ تھا دکھایا ہم کو, تو ہم نے اس کو کہا کہ یہ بندہ آپ کی پولیس والا ہے.
तो वो उसने कहा नहीं वो यार चले गए। फिर आधे घंटे बाद वो बाइक दे गए। हमने कहा हमें बाइक मिल गई, हमें बंदा दो। फिर उन्होंने बंदा नहीं दिया हमें, जो चोर था। तो चोर हमें नहीं उन्होंने दिया। तो उन्होंने कहा आपको बाइक मिल गई, आपको बंदे से क्या लेना देना। मैंने ऐसे पूछा, मतलब 2 इधर लड़के थे, मैंने कहा बाइक तो आपने नहीं दी, किसने ली? तो उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं पकड़ी। डीपीओ मंसूर अमान का ओकाड़ा यूनिवर्सिटी का दौरा, तलबा को पुलिस मोबाइल खदमत मरकज और उसकी सहूलियत के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत की इस खुसूसी रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, डीपीओ ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के तुलबा को पुलिस मोबाइल खिदमत मरकज पर ब्रीफिंग। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा मंसूर अमान ने अपनी टीम के हमरा ओकाड़ा यूनिवर्सिटी का दौरा भी किया और तुलबा को पुलिस मोबाइल खिदमत मरकज और उसकी सहूलत के मुतालिक ब्रीफिंग दी। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर फाइनेंशियल डॉक्टर शुएब सलीम, डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर्स डॉक्टर अमजद अली, चेयरमैन शोबा एजुकेशन रिसर्च एंड इस्टमेंट, चेयरमैन शोबा टीचर एजुकेशन डॉक्टर खालिद सलीम, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, सिक्योरिटी ऑफिसर नौबहार खान समेत कई इंतजामी अफसरान और उस्ताजा भी मौजूद थे। तुलबा से बात करते हुए डीपीओ ने बताया, तो मुझे जिस तरह से लोग देखते हैं वो बड़ा ऑड लगता है। इस वजह से मैं यूजुअली आई वियर बताया कि उन्होंने शहरियों के लिए तमाम थानों में खिदमत मरकज की सहूलत को 24 घंटे फराहमी को यकीनी बनाया। उन्होंने मजीद बताया कि खिदमत मरकज की मोबाइल वैन तमाम इलाकों और ख़ास तौर पर तालीमी इदारों में जाकर शहरियों को उनकी दहलीज पर मुख्तलिफ खिदमात जैसा कि ड्राइविंग लाइसेंस और करैक्टर सर्टिफिकेट फराहम कर रही है। यूनिवर्सिटी के तर्जुमान के मुताबिक पिछले 2 माह के दौरान मोबाइल वैन ने मुतअद्दिद बार ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में आकर तुलबा और स्टाफ को मुख्तलिफ खिदमात फराहम की हैं। इससे शहरियों का खबर आपको दें कि तंबाकू नोशी से हर 6 सेकंड बाद एक शख्स की मौत होती है। हर साल 50 लाख अफराद जान की बाजी हार जाते हैं, जबकि 20वीं सदी में 10 करोड़ अफराद तंबाकू नोशी से अपनी जिंदगियों से महरूम हो चुके। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का बच्चों को तंबाकू नोशी के असरात और नुकसानात से आगाही फराहम करने की तकरीब से खिताब, बोले कि तंबाकू नोशी के हवाले से कुछ अहम सवालात पूछना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से औसतन हर 6 सेकंड बाद एक शख्स की मौत वाक़ई होती है। 20वीं सदी में तंबाकू नोशी की वजह से 10 करोड़ लोग अपनी जिंदगियों से महरूम हो चुके। खबर शामिल करेंगे मुजफ्फराबाद से, जहां म्यूनिसिपल कारपोरेशन की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मिटन मार्केट में फरोख्त के लिए लाया गया नाकिस मुसरे सेहत गोश्त बरामद करके तल्फ कर दिया गया। कार्रवाई में डिप्टी चीफ ऑफिसर बल्दिया अंजुम बिलाल, म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट सरदार इमरान, इंस्पेक्टर डॉक्टर जाहिद रफीक, इंस्पेक्टर इन बल्दिया मलिक एजाज महबूब, सरदार जुनेद, नदीम मीर, एससी मुसम्मिर राठौड़ शरीक थे। सरदार इमरान का कहना था कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन शहरियों को सहूलियात के लिए भरपूर इकदाम उठा रही है। शहरी भी बल्दिया से मुकम्मल ताउन करें। पाक कम्युनिटी जद्दा की बेहतरीन बिजनेस वुमन मारूफ और हर दिल अजीज शख्सियत शगुफ्ता मनाफ की जानिब से मकामी होटल में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मीडिया नुमाइंदों ने भरपूर शिरकत की। आयशा फारूक, इरम उस्मान ने नज़ामत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। तकरीब में तमाम मकातब फ़िक्र के लातादाद अफराद एक छत तले आए। फॉर एवर ईगल के फाउंडर CEO शगुफ्ता मनाफ की शख्सियत एक शफीक इंसान, मुहिब वतन और पाक कम्युनिटी की हर दिल शख्सियत के तौर पर जानी और मानी जाती है। शगुफ्ता मनाफ का कहना था कि इवेंट करने का मकसद लेडीज़ अपने टैलेंट को पहचाने और ख़ुद मुख्तारी खातून बने, और मेरी ये ख्वाहिश खुश नसीबी है कि मैं उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रही हूँ। नाज़रीन, खबर शामिल करेंगे जेहलम से, जहां मौसम सरमा में अगर मछली की बात की जाए तो मंगला डैम की मछली लज़्ज़त और जायके में अपना मुनफरिद मकाम रखती है। इसी पर मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं एहसान जंजुआ। अंगारों पर चटपटे मसालों से तैयार मछली खाने में इतनी ही लजीज होती है कि दूर दराज से लोग मंगला डैम की मछली खाने के लिए मंगला डैम के करीब कायम ढाबों का रुख करते हैं। ढाबों पर तैयार की जाने मछली की इश्तियार अंगेज खुशबू लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। सबरवाल से आया हूँ। ये ढाबे पे मछलियाँ मंगला डैम की ये ताज़ा मछली है और ये
ہم کھانے آئے اپنی فیملی کے ساتھ اور یہ بہت مزے کی مچھلی. شہری دور دور سے کوئلے پر پکی مچھلی کھانے کے لیے یہاں آتے ہیں. لوگ جو ہے نا اسلام آباد سے، جہلم سے، آزاد کشمیر، میرپور سے، ڈڈیال سے اور آس پاس بہت سے علاقوں سے لوگ ادھر آتا ہے تو مچھلی کھانے کے لیے. اس ذائقے کی وجہ سے یہ مچھلی شوق سے کھائی جاتی ہے، جسے دور دور سے لوگ مچھلی کھانے آتے ہیں. سردیوں کے موسم کو انجوائے کرنے کے لیے دور دراز سے لوگ یہاں ڈھابے پہ آتے ہیں اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ منگلا ڈیم کی تازہ فش یہاں پہ پرووائڈ کی جاتی ہے. خبر شامل کریں گے ڈیرہ غازی خان سے، جہاں شہر بھر کے فلٹریشن پلانٹ مرمت نہ ہونے کی وجہ سے بند پڑ گئے ہیں. شہریوں کو پینے کے صاف پانی کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. رپورٹ کریں گے محمد علی میرانی. ڈیرہ غازی خان شہر بھر کے فلٹریشن پلانٹ مرمتی نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو گئے. شہری پینے کے صاف پانی نہ ملنے کی وجہ سے پریشان. شہر بھر میں ضلعی انتظامیہ اور مخیر حضرات کے تعاون سے لگائے گئے فلٹریشن پلانٹ خراب ہونے کی وجہ سے شہر بھر میں پانی کی قلت پیدا ہو گئی. شہریوں نے اپیل کی ہے کہ ان فلٹریشن پلانٹ کو جلد از جلد چالو کیا جائے تاکہ لوگوں کو صاف پانی میسر ہو سکے. کیمرہ مین ناصر سومرو کے ساتھ محمد علی میرانی، کوہ نور. ناظرین خبر شامل کریں گے ٹھٹا سے، جہاں گورنمنٹ پبلک اسکول مکھلی میں ثقافتی دن کے حوالے سے ایک رنگا رنگ تقریب منعقد کی گئی. ایس ایس پی ٹھٹا آفتاب نظامانی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. صدارت ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر پرائمری ٹھٹا نظام الدین نے کی. بچوں نے ثقافتی گیتوں پر ٹیبلوز پیش کیے اور رقص بھی کیا. پرنسپل زینب شاہین نے اسکول کے مسائل سے مہمانوں کو آگاہ کیا. آفتاب نظامانی کا کہنا تھا کہ پبلک اسکول مکھلی کے بچوں میں بہت ٹیلنٹ موجود ہیں اور وہ بہت جلد ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ٹھٹا کے ساتھ اس اسکول میں اسپورٹس فیسٹیول ضرور کروائیں گے. اور خبر آپ کو دیں حافظ آباد سے، جہاں شہریوں کی دوڑے لگوانے والا جنگلی ہرن ریسکیو ٹیموں نے قابو کر لیا ہے. ریلوے اسٹیشن کے علاقے میں جنگلی ہرن داخل ہو گیا جس نے شہریوں کی خوب دوڑیں لگوائیں. ہرن رہائشی آبادی کے مختلف گھروں میں دوڑیں لگاتے رہے. ریسکیو ٹیموں نے طویل جدوجہد کے بعد جنگلی ہرن کو پکڑ لیا. حیدرآباد میں لیاقت یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس کے زیر اہتمام سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا، جس میں حاملہ خواتین میں معدے اور جگر کے امراض سے متعلق سیمینار سے وائس چانسلر اکرام الدین اوجن نے خطاب کیا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دانش شیخ کی رپورٹ. حیدرآباد میں ڈپارٹمنٹ آف گیسٹرولوجی لیاقت میڈیکل یونیورسٹی اینڈ ہیلتھ سائنس جام شورے کے زیر اہتمام باہمی اشتراک سے حاملہ خواتین میں معدے و جگر کے امراض کے موضوع پر ایک روزہ سمپوزیم منعقد کیا گیا. آج ہم نے جو سمپوزیم رکھا ہے وہ گیسٹرو ڈپارٹمنٹ کا ان کولیبریشن ود گائنی ڈپارٹمنٹ اور پاکستان سوسائٹی آف ہیپاٹولوجی کے تعاون سے ہم نے یہاں پہ ایک منعقد کیا ہے ہوٹل میں. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی جگر کی بیماریاں یا آنتوں کی بیماریاں حاملہ عورتوں کے اندر ہو جاتی ہیں اور اس سے کیا کیا نقصان پہنچ سکتا ہے حاملہ عورتوں کو یا ان کے بچوں کو، تاکہ ہم ٹائملی اس کو ٹریٹ کر سکیں، اس کو بچا سکیں. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ 4% لوگوں کے اندر، پریگننٹ لیڈیز کے اندر یہ وائرس ہو جاتا ہے. بیسک اس کا مقصد تھا وہ تھا اویئرنیس فار ہیپاٹائٹس، جو ہیپاٹائٹس بی اور ڈی اور ای کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں جس طرح کی کمپلیکیشن سے گزر رہے ہوتے ہیں اور جو نیو ٹریٹمنٹس ہمارے پاس پاکستان میں اویلیبل ہیں اس کے اوپر اویئرنیس کی بہت کمی ہے پاکستان میں. تو ہم لوگوں نے ود فیروز سن نے یہ انیشیٹو لیا ہے اکیڈیمک کا حیدرآباد میں ڈاکٹر اکرم باجوہ کے ساتھ ان کو جو ہے نا پلیس کیا حیدرآباد میں. اینڈ وی آر ویری ہوپ فل کہ جو ہمارا ایم ہے کہ ٹو میک پاکستان ہیپاٹائٹس فری بائی 2030 اس کو ہم لوگ اچیو کر سکیں ود obviously collaboration of all the important doctors of Hyderabad, Sakhrand. انڈس ہوٹل میں منعقد ہونے والے سمپوزیم کے مہمان خصوصی لیاقت یونیورسٹی ہیلتھ سائنس جام شورے کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اکرام الدین اوجن تھے، جبکہ پروفیسر ڈاکٹر معین احمد انصاری اور ڈاکٹر ذوالفقار علی دانجرو نے خصوصی طور پر شرکت کی. میں اس موقع پہ ایک میسیج ضرور دینا چاہوں گا لوگوں کو کہ ہیپاٹائٹس جو کہ بدقسمتی سے پاکستان میں اس کی تعداد روزانہ کی بیسس پہ بڑھتی جا رہی ہے. روزانہ سینکڑوں لوگ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں ہیپاٹائٹس سے. ہیپاٹائٹس جس کو ایک خاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے، اس میں تقریباً 15 سے 20 سال میں ایک انسان کا جگر ختم ہو جاتا ہے اور اس کی کمپلیکیشن اتنی زیادہ ہے
कि जब मरीज़ उसके पेट में पानी पड़ जाता है, उसके पाँव सूज जाते हैं, उसके चेहरा सूज जाता है, उसकी किडनीज़ मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ जिगर के मसले, जिसमें हमारा मेन मकसद ये है कि हामला औरतें जिनको कोई जिगर की बीमारी है या कोई हेपेटाइटिस का मसला है तो उनका कैसे हमल के दौरान इलाज किया जाए ताकि उनकी सेहत बेहतर रहे और डिलीवरी में भी मसाइल कम हों। सिम्पोजियम के इनकाद का मकसद हामला खवातीन में मैदे व जिगर के अमराज के मुताबिक मालूमात फराहम करना और आगाही देना था कि अमल के दौरान या डिलीवरी के बाद इन अमराज से कैसे बचा जा सके। कैमरामैन आसिफ कुरैशी के साथ दानिश शेख, केएन न्यूज़, हैदराबाद। हैदराबाद में अंजुमन ताजरान फलेरी बाजार के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की खदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें अजरक और शील्ड के तोहफ़े भी पेश किए गए। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे दानिश शेख। अंजुमन ताजरान के ज़ेर एहतमाम तकरीब पजीराई परफेक्ट एसोसिएट्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के हेड ऑफिस में मुनक्किद की गई। तकरीब में मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए अजरक और शील्ड के तोहफ़े पेश किए गए, जिनमें असिस्टेंट कमिश्नर कनकोट उमेर अरशद कुरैशी, प्रोफेसर इमरान शेख, SHO मुमताज़ अली बरोही, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी शोबा उर्दू के प्रोफेसर हसन राशिद, गुलाम फारूक कुरैशी, प्रोफेसर खलील जब्बार, रिटायर्ड DSP असद अली कादरी, प्रोफेसर रफीक अहमद भट्टी, ASI मोहम्मद यूनुस कुरैशी, अयाज नजम चन्ना, SO ट्रैफिक फुलेली राना जुल्फिकार अली, जावेद इकबाल, मोहम्मद हुसैन गौरी, मेहर अली, आसिफ अली व दीगर शामिल थे। जबकि इस मौके पर अंजुमन ताजरान के सदर मसरूर भट्ट, नायब सदर व परफेक्ट एसोसिएट्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के डायरेक्टर रफीक बलोच, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के डिवीजनल नायब सदर व परफेक्ट एसोसिएट्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के डायरेक्टर मजर रफ़ी मेमन, अहमद नवाज मक्सी, इनायत अली सम्मो, अब्दुल हफीज़ खास केली, अब्दुल मजीद कायम खानी, शाहिद निज़ाम, AK बलोच, मोहम्मद हुसैन गौरी, रफ़ीक कराई, मोहम्मद अली नायो, अब्दुल वहीद कुरैशी, हाशिम मलिक, नईम मलिक, रफ़ीक मलिक समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत। अनासिन खबर शामिल करेंगे माती से, जहां यूसी नसीर खान चांग के रिहायशियों का साबका नुमाइंदों की जानिब से इलाके के मसाइल न हल करवाने पर नाराजगी का इजहार है। शिकवा करते हुए कहा कि अरसा दराज से खस्ता पुल तहार मुरम्मत नहीं हो सका। बच्चे स्कूल मसनूई तार नुमा पुल से गुजरने पर मजबूर हैं, जो कि कई बार हादसे का शिकार भी हो चुके हैं। आला हुकाम से इलाके के मसाइल हल करने की अपील कर दी गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं राव शकील। मातली के नवाई गांव यार मोहम्मद लाशारी यूसी नसीर खान चांग के रिहायशी अपने इलाके के मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से इलाके के मसाइल हल न किए जाने पर शिकवा शिकायत और नाराजगी का इजहार किया। अरसा पहले टूट जाने वाला नहरी पुल ताहाल तामीर न हो सका। नहर की दूसरी तरफ स्कूल में जाने के लिए तुलबा और तालबात नहर के दरमियान लगी लोहे की तार से गुजर कर जाने पर मजबूर हैं। बच्चे इस पुलसरात नुमा तार से गुजर कर स्कूल जाते हैं, जो कि कई दफा हादसे का शिकार भी हो चुके हैं। और हमने जो आरजी पुल बनाई है, सारे बच्चे इस आरजी पुल से गुजरते हैं और ये बच्चे यहाँ से कई मरतबा गिरे हैं और सारे बच्चों को हमने अस्पताल भी लेके गए हैं। पहले सैयद नवीद कमर भी आया था, वो भी ये देख के गया है। और फिर हमारा जो कब्रिस्तान है वो भी उस तरफ है, हम जो स्कूल है वो भी उस तरफ है। हम आला अमलदारों से गुजारिश है कि हमें ये पुल तमीर करके दें। MNA की सीट पे सैयद नवीद कमर तकरीबन 35 साल से जीते आ रहे हैं और MPA की सीट पे करीम सुमरो तकरीबन 35-40 साल से वो भी जीते आ रहे हैं, लेकिन वो जीत के यहाँ जाते हैं फिर वापस नहीं आते हैं, फिर दोबारा इलेक्शन के टाइम पे वापस आते हैं। यहाँ खाली ये एक पुल का मसला नहीं है, यहाँ जो भी आगे सारी पुलें सारी टूटी हुई हैं। इलेक्शन के करीब आते ही इलाका मकीनों का वोट के लिए आने वाले मेंबरान से मसाइल न हल होने पर शिकवा और नाराज। इलाका मकीनों का आला हुकाम से इलाके के मसाइल हल करने की अपील। कैमरा टीम के साथ राव शकील,
नाजरीन, मलिकवाल के थाना गोजरा की हदूद में कत्ल की लर्जा खेज वारदातें। चंद घंटों के अंदर ही गारत के नाम पर 2 खातीन को कत्ल कर दिया गया है। इलाका रकन में शहराज ने अपनी 22 साला बहन के गले में रस्सी का फंदा डालकर उसे मौत के घाट उतार दिया। गांव बोसाल में खावन शुएब ने अपनी 30 साला बीवी का गला काट कर कत्ल कर दिया। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद दोनों वाकयात की तफ्तीश शुरू कर दी है। नाज़रीन, खबर है कि पाकिस्तान खास खेली तंजीम के चेयरमैन मिंठार अली खास खेली ने सूबाई सीनियर नायब सदर हाजी अल्ताफ खास खेली शेर मोहम्मद खास खेली के हमरा मटियारी में पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रिपोर्ट कर रहे हैं अली फैजान। पाकिस्तान खासकली तंजीम के मरकजी चेयरमैन मंठार अली खासकली ने सूबाई सीनियर नायब सदर हाजी अल्ताफ खासकली शेर मोहम्मद खासकली के हमरा मटियारी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मटियारी जिले में सबसे ज्यादा वोट हमारी खासकली बरादरी के हैं। इसके बावजूद हर इलेक्शन में सियासी पार्टियां हमें नजरअंदाज करती हैं। मटियारी जिले के NA 216 पर हमारे बरादरी के 60,000 वोट हैं, जबकि PS पर हमारे 30,000 से ज्यादा वोट हैं। हमने आने वाले इलेक्शन में NA 216 पर और PS पर हमारे सूबाई वाइस प्रेसिडेंट हाजी अल्ताफ को खड़ा करने का फैसला किया है। अॼु असां फैसलो कया त इंशाल्लाह मटियारी में जीअं ई बना फार्म भरबा इंशाल्लाह असांजो हाजी अल्ताफ खासकेल साहब इंशाल्लाह खटींदो। असां PS 57 ऐं NA 216 ते इंशाल्लाह फार्म भरींदासीं ऐं इंशाल्लाह खटींदासीं। उस मौके पर हाजी अल्ताफ खासकली ने कहा है कि हर इलेक्शन में वडेरों ने हमें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया है, मगर इस बार इनको इलेक्शन के दिखाएंगे और इंशाल्लाह जीत के भी दिखाएंगे। कैमरामैन सलमान अली खासकली के साथ अली। DC बनी शाह साउद ने AC सईद इब्रार अली शाह के हमरा खलीफा गुल नवाज अस्पताल का दौरा किया है। मुतालिक इंचार्ज डॉक्टर्स ने ब्रीफिंग भी दी। डिप्टी कमिश्नर बनू मरीजों से मिले और खैरियत दरियाफ्त की। DC ने मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना भी किया है। तमादारों से अस्पताल से मुतालिक तजावीज़ पर तबादला ख्याल। अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं कि नारंग मंडी में 30 साला नौजवान को मामूली तनासे पर कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त कामरान के नाम से हुई है। नारंग पुलिस ने 6 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि लाहौर रोड पर ट्रैफिक हादसे में एक शख्स मौका पर जा बहक और 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसे में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ की कौमी वुमेन्स क्रिकेट टीम की न्यूजीलैंड में तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद। बोले कि पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने न्यूजीलैंड में अपनी महारत और सलाहियतों का शानदार मुजाहरा किया है और पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पूरी टीम और मैनेजमेंट की मेहनत और लगन को सराहता हूँ। कप्तान निदा डार ने जिस अंदाज से टीम की क़यादत की और टीम को फतह से हमकिनार किया, वो काबिल फ़ख्र है। ज़का अशरफ का दौरा न्यूजीलैंड से वापसी पर पाकिस्तान वुमेन्स टीम के एजाज में खसूसी तकरीब की मेजबानी का भी ऐलान। वाज़ेह रही कि पाकिस्तान ने दूसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड को 10 रन से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल की थी। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। दुनिया भर की तरह लाहौर में भी आज मट्टी का आलमी दिन वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जा रहा है। वर्ल्ड सॉइल डे मनाने का मकसद किसानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराना है ताकि वो ज़मीन से ज़्यादा अनाज हासिल कर सके और आवाम को खुराक फराहम करें जिसमें ताकत भी हो। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे उस्मान मुगल। आज दुनिया भर की तरह लाहौर में भी वर्ल्ड सॉइल डे मनाया गया। मट्टी एक कुदरती वसीला है। हम खेती बाड़ी के लिए मट्टी का इस्तेमाल करते हैं। हमारी खुराक मट्टी से आती है। जानवर अपनी खुराक भी मट्टी से हासिल करते हैं। हम ज़मीन पर कचरा फेंकते हैं। फैक्ट्रियां भी जब ज़मीन पर कचरा फेंकती हैं तो ये फसलों को गैर सेहतबख्श करता है। हमें अपनी मट्टी की हिफाजत करनी चाहिए क्योंकि मट्टी से सेहतबख्श खुराक हमें मिलती है। इसमें किसानों का बहुत अहम किरदार रहा है।
इसी हवाले से सोइल डे मनाया जा रहा है। दुनिया भर की तरह लाहौर में भी सोइल फर्टिलिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट पंजाब डे मनाया गया, जिसमें डीजी समेत दूसरे शहरों के आला अफसरान ने शिरकत की। ऑस्ट्रेलिया से आई हुई टीम और एग्रीकल्चर के आला अफसरान का कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था, दुनिया में सॉइल का दिन मनाया जा रहा है इस मकसद के साथ कि लोगों को इसके बारे में आगाही दी जाए कि ये एक बुनियादी चीज़ है और इसको बड़ा जुडिशियस इसका इस्तेमाल होना चाहिए और इसकी फर्टिलिटी जो है इसकी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास सॉइल सेहतमंद नहीं होगी तो हमारे इंसानों की सेहत अच्छी नहीं होगी, हमारे जानवरों की सेहत अच्छी नहीं होगी। हमें इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन जो सॉइल फर्टिलिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट पंजाब में ये ठोकर न्याज बेग पे मनाया जा रहा है, इसमें वर्ल्ड सॉइल डे के हवाले से है और ये बहुत ही अहमियत का दिन है, क्योंकि ज़मीन है तो सब कुछ है। ज़मीन से ही हम फसलें उगा रहे हैं, ज़मीन से ही पानी निकाल रहे हैं। जी, आज सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के हवाले से जो वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जा रहा है वो सॉइल एंड फर्टिलिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट मनाया जा रहा है। फातिमा फर्टिलाइज़र भी इसमें अपना रोल प्ले कर रही है और हम भी फार्मर के पास जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ज़मीन और पानी ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि जो पाकिस्तान के पास बहुत लिमिटेड है और इनमें मज़ीद जो है इनमें इजाफा होना मुमकिन नहीं है। Well, Soil World Day is a very good occasion to give thought to the importance of soil for us as people, as a community. So with soil, we are fully dependent on the soil. We cannot survive without it. We live on it. We grow crops from it. आला अफसरान ने बताया कि ज़मीन और पानी किस तरीके से अनाज पैदा करते हैं, हमें अपनी ज़मीन की हिफाजत करनी चाहिए। कैमरामैन शाहीन बाबा के साथ उस्मान मुगल, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। खबर शामिल करेंगे सियालकोट से, जहां वुकला को साथी मेंबर बार की रिहाई के लिए एहतजाज करना महंगा पड़ गया है। सदर सेक्रेटरी बार समेत 50 वुकला पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मेंबर बार इब्रार वलाना को 5 रोज कबल पुलिस ने घर से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने 3 MPO के तहत इब्रार वलाना को जुडिशल किया था। गुज़िश्ता रोज वुकला ने साथी वकील की गिरफ्तारी के खिलाफ कचहरी में शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इंतजामिया ने सदर सेक्रेटरी बार समेत 50 वुकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक कानून से कोई भी शख्स बानतर नहीं, किसको कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। अपडेट करते चले इस हवाले से सियालकोट से, जहां वुकला को साथी मेंबर बार की रिहाई के लिए एहतजाज करना महंगा पड़ गया। सदर सेक्रेटरी बार समेत 50 वुकला पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मेंबर बार इब्रार विलाना को 5 रोज कबल पुलिस ने घर से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने 3 MPO के तहत इब्रार विलाना को जुडिशल किया था। गुज़िश्ता रोज वुकला ने साथी वकील की गिरफ्तारी के खिलाफ कचहरी में शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। इंतजामिया ने सदर सेक्रेटरी बार समेत 50 वुकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक कानून से कोई भी शख्स बालातर नहीं, किसी को कानून हाथ में लेने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। आइंदा माह जनवरी में एक्सपो सेंटर में होने वाले मेड इन पाकिस्तान नुमाइश के ऑर्गेनाइजर राना इफ्तिजार रहमान ने कहा है कि 5 से 7 जनवरी के दौरान पाकिस्तानी मसनूआत की नुमाइश का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें मकामी कंपनियां भी हिस्सा लेने के लिए पुरजोश दिखाई देती हैं। शहरियों को मुल्क में बनने वाली मसनूआत तरजीही बुनियादों पर खरीदनी चाहिए। इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ अली फारूक से। चलिए बताइएगा इस हवाले से। जी, मैं मौजूद हूँ हुदा कंसल्टेंट के डायरेक्टर हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं जो ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मेड इन पाकिस्तान एक्सपो, उसके क्या फीडबैक मिल रहे हैं और क्या इकदाम किए जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या आपका? इरसा रहम। सामने देखिएगा प्लीज। अच्छा, बताइएगा क्या इकदाम कर रहे हैं। हम लोग इसमें जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहे हैं नए बिजनेसमैन के लिए, कि जो कि हमारे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं इनको हम प्रमोट करें, और पाकिस्तानी जितने भी यंगेस्ट हैं इनके लिए हम चाहते हैं कि इनको बिजनेस मिले, यानी कि हम जॉब ढूंढने के लिए बाहर के ममालिक में चले जाते हैं, हम देखते हैं कि अपने मुल्क को छोड़ के बाहर को निकल जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर हम इन्हें
अवेल करें तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी मुल्क के पास जाके उनकी नौकरियां करनी पड़ेंगी। हमें अपने मुल्क के अंदर ही इसके बहुत सारे सोर्सेज मौजूद हैं। एक दूसरे से बिज़नेस को शिफ्ट करने के लिए हमने ये मेड इन पाकिस्तान का जो है हमने इसकी क्या कहते हैं कि एक इंट्रोडक्शन करवाया है, और इसी के अंदर रह के हमने एक इसकी हाइप बनाई है कि लोग इसके अंदर आएँ और आके अपने आप को बताएं कि हम ये बिज़नेस कर रहे हैं। इससे ये कि देखा देखी दूसरे लोग भी इसके बिज़नेस के अंदर आएंगे कि हम हर इंसान की एक सक्सेसफुल स्टोरी है, जिसको हम कहते हैं कि इंसान ज़िंदगी में कामयाब होता है तो उसकी एक स्टोरी होती है। उसके अंदर चाहे वो अपने घर से स्टोरी ले ले, बाहर से ले ले, किसी जगह से भी ले ले, उसकी उस स्टोरी को देखा तो वो ज़िंदगी में आगे बढ़ने में 1 मिनट भी नहीं लगाएगा, वो आगे बिज़नेस ही करेगा। हम जॉब भी करते हैं, जॉब से सीख के फिर बिज़नेस की तरफ आते हैं। जब फर्स्ट डे से आप सोचेंगे हमने बिज़नेस करना है, हम चाइना की मिसाल देते हैं, हम दूसरे कंट्रीज़ की मिसाल देते हैं कि जी वो बिज़नेस में बड़े सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन उनकी आपने सोच देखें कि वो दिन रात बिज़नेस को बिज़नेस समझ के करते हैं, ना कि लोगों को लूटने के लिए करते हैं। हम अगर एक चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट की एक क्वालिटी एक दफ़ा अच्छी दे दी, दूसरी दफ़ा से गंदी दे दी, ताकि वो पाकिस्तान दोबारा वापस आए ना। हमारा ये जो मेड इन पाकिस्तान का जो एक प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर हम इंशाअल्लाह लोगों को, यंगेस्ट बिजनेसमैन को, नए आने वाले बिजनेसमैन को प्रमोशन भी देंगे, उन्हें उनको स्किल्स भी प्रोवाइड करेंगे, उनको जो भी फैसिलिटेट कर सके हम इसके अंडर अम्ब्रेला करेंगे, और इंशाअल्लाह लोगों को पता चलेगा कि भी किसी ने हमें हाइप दी है। देखिए बहुत सारी गवर्नमेंट के अदारे भी इसके में काम कर रहे हैं, लेकिन हम जो इकदाम उठा रहे हैं उसके अंदर एक लोगों के लिए एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं कि एक सूटेबल उन्हें एक प्लेस में यह करेंगे। अगर कोई इन्वेस्टिंग करना चाहता तो उसको बिजनेस बताएंगे, अगर कोई किसी के पास बिजनेस है तो उसको इन्वेस्टर का बताएंगे। एक गिव एंड टेक है बिजनेस के अंदर, जो कि लोग समझते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ की होनी चाहिए। बहुत मेहरबानी, गुफ्तगू सुनी। सबसे खूबसूरत बात जो उन्होंने की है वो ये की है कि मेड इन पाकिस्तान एग्जीबिशन से हम लोगों में, उन यंग जनरेशन में ये अवेयरनेस देंगे कि वो अपने बिजनेस की तरफ आएँ, बजाय से नौकरियां ढूंढें, और पाकिस्तान की मसनूआत की प्रमोशन भी। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी, और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।